Hello students, how is everyone? I hope you all are fine. So see today we will begin learning science topic 3 force and pressure. So this is the first lecture of force and pressure. In this topic we will learn about force and types of force. Then in the next part we will study about inertia and types of inertia. Then we will study about the pressure on solids, liquid, and gas. And then in the last part, we will study about buoyant force and Archimedes principle. Okay, so let's start with the first part. We will first see about force and types of force. So सी कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने के लिए हमें उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है या उसके ऊपर जोर देना पड़ता है. ठीक है. Now see this ball is moving on the ground. अभी ये बॉल को किसी ना किसी ने पुश किया रहेगा. ओनली देन इट केम इनटू मूवमेंट, देन इट केम इनटू मोशन. अभी ये बॉल अगर रोल कर रहा है ग्राउंड पे, सो विल इट कीप रोलिंग फॉर एवर? नहीं, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और अल्टीमेटली वो रुक जाएगा. So what is force? Force is a physical quantity that brings an object from rest to motion or motion to rest. मतलब force एक physical quantity है जिसके थ्रू motion जो भी objects है they come into motion, they come into movement. अगर force नहीं होगा तो कोई भी object जो है वो move नहीं होगा. Even अगर कोई object move हो रहा है तो उसको रोकने के लिए भी we have to apply force on it. ठीक है. यहाँ पे भी जो बॉल है, सी जब भी ग्राउंड के ऊपर वो रोल करता है, सो ग्राउंड जो है उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है. वी कॉल इट एज फ्रिक्शनल फोर्स. और वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से द बॉल कम्स टू रेस्ट, मतलब द बॉल स्टॉप्स अल्टीमेटली. ठीक है. अभी अगर फोर्स होता ही नहीं सो क्या होता? सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है सो वो रुका हुआ ही रहता. इट विल नॉट कम इनटू मोशन. और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव हो रहा है, सो इट विल नॉट कम टू स्टॉप. वो कंटिन्यूअसली मूव ही होता रहता इफ देयर वर नो फोर्स. सो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. हाउ वी विल डिफाइन इट? वी से दैट if there is no force acting on object, then the object at rest will remain at rest, and if the object is in motion, then it will remain in motion. So this is Newton's first law. Now see, we will study about the types of force. So firstly, we will see that there are two types of force. पहला है contact force और second है non contact force. Now as the name suggests, contact force मतलब जब भी हम अगर कोई object पे force exert करते हैं by touching it, then it is called as contact force. So a force which acts through direct contact of objects is called as contact force. अभी contact force के examples हैं muscular force एंड फ्रिक्शनल फोर्स. मस्क्यूलर फोर्स मतलब जो भी हम दैट हमारी ताकत से कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं मस्क्यूलर फोर्स. ठीक है. सो सी फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू लिफ्ट दिस बुक. सो देखो बुक लिफ्ट करने के लिए हमें उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा. नाउ कैन यू लिफ्ट द बुक विदाउट टचिंग इट? नो यू कैनॉट. हम जस्ट ऐसे बुक को देख के उठा नहीं सकते. वो जादू वादू हमारे अंदर ह्यूमंस में नहीं होता. इट इज जस्ट फिक्शियस. सो यहाँ पे इफ आई वांट टू लिफ्ट द बुक देन एक्चुअली वी हैव टू टच द बुक्स. सो वी से दैट इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. नाउ सेकंड एग्जांपल यहाँ पे बताया है. देखो द पर्सन इज लिफ्टिंग द वाटर विद द हेल्प ऑफ अ rope. Now can you lift a bucket of water without touching the rope? No, you cannot. We have to touch the rope and we have to apply force on the rope, because of which the bucket of water will be raised, will come up. So देखो यहाँ पे bucket जो है it is contact with the rope and we are in contact with the and we are applying force on the rope. So indirectly हम भी ये bucket के साथ contact में है and we are applying the force on this bucket
through this rope, because of which it comes into motion. So even this is an example of muscular force. So see, we cannot hold a bucket without touching it. So to apply a force on any object, the body has to be in contact with it. And when this happens, we say that it is a contact force. So muscular force, जैसे मैंने आपको बताया, the force resulting due to the action of our muscles, हमारे muscles की ताकत से जो भी हम force exert करते हैं, उसको हम बोलते हैं muscular force. ठीक है? Next is frictional force. Frictional force is also a type of contact force. So now see here, यहाँ पे the person is pedaling a cycle. Now when we stop pedaling the cycle, what we see that जो साइकिल की स्पीड है वो कम हो जाती है एंड फाइनली द साइकिल कम्स टू स्टॉप. नाउ स्टॉप क्यों होती है वो? सो एज आई सेड यू बिफोर ऑल्सो, यहाँ पे जब ये साइकिल जो है वो ग्राउंड पे चलती है, सो ग्राउंड एक्सर्ट्स एन ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द साइकिल. और ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये देखो हमारा जो मस्क्यूलर फोर्स है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ग्राउंड उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करता है. और ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से द ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है वो कम हो जाती है एंड फाइनली दे कम टू स्टॉप. सिमिलरली यहाँ पे भी यू कैन सी अ कार, it also comes to rest when its engine is switched off. Why? Because जब भी हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना छोड़ देते हैं, सो ग्राउंड उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से द कार जो है वो रुक जाती है. Even see here, if you kick the ball will not move forever as we have seen before, but due to frictional force, the ball will stop. So the force responsible for changing the state of motion, that is bringing the ball to rest, is called as force of friction. So देखो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इट इज ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स अप्लाइड बाय अस. सो अगर हम फोर्स राइट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, एक्सर्ट करेंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा. So friction always acts opposite to the direction of motion. Next we will see about non-contact forces. सो ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट फोर्स में जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, सो वी टच दैट ऑब्जेक्ट. नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में एज द नेम सजेस्ट, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स होता है एंड दोस टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड एज non-contact force. So a force which acts between two objects even if they are not in contact is called non-contact force. अभी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के टाइप्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. सो लेट अस फर्स्ट सी ग्रेविटेशनल फोर्स. सो यू नो दैट अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो लाइक एज यू सी द एप्पल, अगर वो झाड़ से टूटते हैं सो दे फॉल डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ. Now see, the earth exerts force on the apple although the apple is not physically in contact with the earth. So यहाँ पे earth and apple के बीच में gravitational force है but दोनों एक दूसरे के contact में नहीं है. So we say that it is non-contact force. So objects get pulled towards earth due to force of gravity. Now always remember that gravitational force is always a force of attraction, means everything is attracted towards the earth. This water also, as you can see, it will not move away from the earth but it will move towards the earth in the downward direction. So it is a uh, gravitational force is always a force of attraction. Next type of non-contact force is electrostatic force. Now see here, you can see that there is a glass rod, a silk cloth, and some bits of paper. Now, when we hold them in this position, anything will happen? No, we will not observe any effect. Now, what we will do? We will rub this glass rod with this silk cloth.
सो एज यू हैव सीन इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे ग्लास रॉड और क्लॉथ को रब करने पे दे डेवलप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑन इट। सो अभी ये दोनों मटेरियल्स जो है वो चार्ज्ड हो गए हैं। नाउ वी विल ब्रिंग देम क्लोजर टू द पेपर। सो सी इफ वी ब्रिंग देम क्लोजर टू द पेपर, हमने देखो ये दोनों चीजें जो ग्लास रॉड है एंड जो क्लॉथ है, वी हैव नॉट टच्ड इट विद द पेपर, वी हैव जस्ट ब्रॉट देम क्लोजर टू द पेपर एंड वी ऑब्जर्व दैट द पेपर दे गेट attracted towards these rod and this cloth. So even though यहाँ पे जो है cloth और जो रॉड है, दे आर नॉट फिजिकली इन कांटेक्ट विद द पेपर, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है उसकी वजह से, द बिट्स ऑफ पेपर्स गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम. So the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. और यहाँ पे भी it is not necessary that the objects remain in contact with each other. नेक्स्ट इज नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स. सो देखो यहाँ पे दो मैग्नेट्स हैं. यू नो दैट जब भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं, देन इवन दो वी डोंट टच देम बाय आवर फोर्स, बट जब भी वो दोनों एक दूसरे के पास रहते हैं, सो उनके बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स रहता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिनकी वजह से वो दोनों मोशन में आके एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं. So we say that magnetic force is a non-contact force because even North Pole and South Pole, they were not physically in contact with each other, but yet they exerted force on each other, due to which they came into motion and they got stick to each other. एंड ऑल्सो यू नो दैट अभी नॉर्थ पोल एक दूसरे को फेस करेंगे, सो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. सो नाउ ये जो ऊपर वाला मैग्नेट है, अगर आप उसको नीचे वाले मैग्नेट की तरफ लेके जाते हो, so even though they will not touch, but it will make the other magnet come into motion because of magnetic force. So यहाँ पे even though the magnets are not touching, yet there is a magnetic force between them. So it is an example of non-contact force. So force exerted by a magnet without being in contact with it is called magnetic force. Now let us see about the effects of force. We know that we cannot see the force, but we can see its effect. Effect मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करने पे क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, दैट वी विल सी नाउ. सो फर्स्ट देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है मतलब रुका हुआ है, सो देखो उसको ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने पे दैट ऑब्जेक्ट कैन कम इनटू मोशन. So when the ball is kicked, it starts moving. पहले वो रेस्ट में था, but if I apply force on the ball, then it starts moving. नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, तो उसको रोकने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ती है. सो से फॉर एग्जांपल व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट, अगर बैट्समैन बॉल हिट करता है, फील्डर क्या करता है, ही टेक्स अ कैच, और जो बॉल मोशन में था उसको रोक देता है फोर्स अप्लाई करके. सो इवन फोर्स इज नेसेसरी टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग. ठीक है. फ्रिक्शनल फोर्स में मैंने जैसे आपको बताया, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, द ग्राउंड एक्सर्ट्स द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ विच इट कम्स टू स्टॉप. सो रोकने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ती है. स्पीड चेंज करनी है हमें, सो देखो भाई, if we want to change the speed, then we apply force on the accelerator और ब्रेक्स, और हमारी जो स्पीड है वो स्लो फास्ट होती है. सो इवन स्पीड चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है. विदाउट अप्लाइंग फोर्स वी कैनॉट चेंज द स्पीड, एंड ऑल्सो वी कैनॉट चेंज द डायरेक्शन. देखो डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है. सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे सपोज बॉल लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, सो व्हाइल बाय हिटिंग इट विद बैट, its direction is changed, it goes in right direction. So even direction change करने के लिए force की जरूरत पड़ती है. Next is change in shape. So here you can see that rubber band अगर मुझे stretch करना है, उसका shape change करना है, so then too I have to apply force on it. हम जब भी आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, so even there we apply force on the dough, and applying the force on the dough changes its shape. So even force can change the shape of an object.
So the different effects of force are, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, मोशन से ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ती है, स्पीड या डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, एंड इवन टू चेंज द शेप फोर्स इज रिक्वायर्ड. So force is necessary to bring a stationary body to motion. Force is necessary to bring a moving body to rest, to change the speed, to change the direction. और जो बॉडी फ्रीली मूव नहीं हो सकती है तो उस पे फोर्स अप्लाई करके वी कैन चेंज इट्स डायरेक्शन, जैसे रबर बैंड. सो फोर्स अप्लाई करने पे दो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, बट उसका शेप चेंज हो रहा है. अंडरस्टूड. सो हियर देखो, पहले जो पिक्चर है, हियर अ कोकोनट इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकंड में द कोम, जो द बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्टिंग टू द कोम, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. थर्ड में द पर्सन इज लिफ्टिंग हैवी वेट, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स. ये है मैग्नेटिक फोर्स. This we can say is muscular direct force, and even this is an example of gravitational force because the water is falling down towards the earth. Now you have to choose the correct alternative from the following. Muscular force is a dash force. So अगर आपने contact force choose किया रहेगा, so you are brilliant. Second, gravitational force is a dash force. So gravitational force is a non-contact force. The force which decreases the speed of motion is called dash force. So इसका क्या आएगा? So if you thought of frictional force, then you are absolutely right. Pulling bucket of water from well is an example of dash force. सो आई नो दैट आपने इसके लिए मस्क्यूलर ये ही आंसर चूज किया रहेगा. सो मस्क्यूलर इज द करेक्ट आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन. आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस? यस. सो देखो, हमने फिलहाल देखा है कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एंड उसमें हमने एग्जांपल्स देखे. नाउ देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ फोर्स व्हिच आर कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है. सो व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स? लेट अस सी विद दिस एग्जांपल. सो देखो, यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर का गेम चल रहा है. सो देयर आर टू टीम्स, रेड सॉरी ग्रीन टीम एंड येलो टीम. नाउ सी, यहाँ पे जो ग्रीन टीम है दे आर अप्लाइंग फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और जो येलो टीम है वो लोग रोप को राइट साइड में पुल कर रहे हैं ना, मींस दे आर अप्लाइंग द फोर्स टुवर्ड्स द राइट साइड. अभी अगर ये दोनों टीम का फोर्स इक्वल रहेगा, सो इफ द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो क्या होगा? कोई भी नहीं जीतेगा, ये जो स्ट्रिंग है वो अपनी जगह पे ही रहेगी. एंड वी से दैट इट इज अ बैलेंस्ड फोर्स, मतलब दोनों ने स्ट्रिंग को बैलेंस कर लिया है. सो द फोर्सेस व्हिच आर इक्वल and act in opposite directions on the same body, then it is called as balanced force. ठीक है. तो यहाँ पे both teams, if they exert equal forces in opposite direction, then both forces balance each other. अभी यहाँ पे इफेक्टिव मतलब टोटल फोर्स दोनों का कैंसल हो जाएगा. सो इफेक्टिव फोर्स विल बी जीरो and the object will not come into motion. So always remember that balanced force में the object remains at rest, it will not come into motion. For example, अगर एक wood का block है, अगर कोई लेफ्ट साइड से उसको पुश कर रहा है और दूसरा पर्सन उसको राइट साइड से सेम फोर्स के साथ पुश कर रहा है, तो देखो वो ब्लॉक जो है वो ना ही लेफ्ट में जाएगा ना ही राइट में जाएगा, बट अपनी जगह पे ही रहेगा. सो वी से दैट इट इज अ बैलेंस्ड फोर्स. नेक्स्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स. नाउ देखो, एज यू कैन सी दैट येलो टीम में अभी खाली दो ही जन रह गए और ग्रीन टीम में 5 जन है. सो नाउ देयर विल बी अनइक्वल फोर्स. अभी जो राइट डायरेक्शन में फोर्स है वो कम हो जाएगा, और जो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स है, दैट इज ग्रीन टीम की तरफ जो फोर्स है, दैट विल बी मोर. So now when the forces are now the forces are unequal and they are acting on the same body, so what we will find that ये जो rope है वो जहाँ पे ज्यादा जो direction में ज्यादा force है वो direction की तरफ move होगी, that is it will move towards the left side. So यहाँ पे the effective force is not zero and it will cause the movement of the rope, it will cause the motion of the object, and we say that it is an unbalanced force. So unbalanced force मतलब when the forces are unequal. ठीक है. And here
there is a motion of the object. So जैसे यहाँ पे हम ब्लॉक का एग्जांपल लेते हैं, अगर एक ब्लॉक है, सो एक जो है लेफ्ट डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स दे रहा है और दूसरे का जो राइट डायरेक्शन में फोर्स है वो कम है. सो वी कैन से दैट जो डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है ना, सो द ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. नाउ सी हियर, अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, सो द टोटल फोर्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस. जैसे यहाँ पे दोनों फोर्सेस, अगर से फॉर एग्जांपल वन दो फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स ब्लॉक को लेफ्ट डायरेक्शन में पुश कर रहा है. पहला फ्रेंड जो है ही इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, दूसरा फ्रेंड जो है ही इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन. सो यू नो दैट दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा एंड द टोटल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी 5 plus 3 which is equal to 8 न्यूटन. So when the force acts in the same direction, then the total force will be addition of the forces. और जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, so of course it will be subtraction. So suppose यहाँ पे एक फ्रेंड है, he is applying a force 5 न्यूटन towards the right side, और दूसरा फ्रेंड है, he is applying a force of 3 न्यूटन towards the लेफ्ट साइड. सो देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, दोनों कंपटीशन कर रहे हैं. सो यहाँ पे इस पे टोटल फोर्स कितना रहेगा, 5 minus 3 which is equal to 2 न्यूटन. अभी ये 2 न्यूटन तो उस पे फोर्स है, बट वो कौन से डायरेक्शन में मूव होगा ब्लॉक. सो जो डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है वो डायरेक्शन में ब्लॉक मूव होगा. सो यहाँ पे वी सी दैट राइट डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है एज कंपेयर टू लेफ्ट डायरेक्शन, so the block will move towards the right side. Okay, so now we will study the inertia and its types in the next lecture. So see, in this lecture we have seen about the types of force. पहले हमने देखा that what is force, then we have seen the types of force. So types of force में there are two types of force. Contact forces, जहाँ पे दो objects जिस पे force act हो रहा है वो contact में हो, और when we apply force on any object by touching it, then it is called as contact force. Contact force में हमने देखा muscular force and frictional force. Then we have seen non-contact force. So non-contact force में दो objects जिनके बीच में force है but they are not in contact with each other, it is called as non-contact force. So non-contact force में we have seen gravitational force, then we have seen magnetic force, and then we have seen electrostatic force. यहाँ पे the objects are not in contact with each other. The objects जिन पे फोर्स एक्ट हो रहा है they are not in contact with each other. Then we have seen the effects of force. So force is necessary to start the object from rest, it is necessary to stop the object, to change the speed, direction and shape, force is necessary. Then we have seen another category of force, balanced force and unbalanced force. So हमने देखा that जब भी forces equal and opposite रहते हैं, so they are called as balanced force. एंड जब भी फोर्सेस अनइक्वल रहता है, इक्वल नहीं रहता है, तभी वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस रहते हैं. अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, सो वी ऐड दोस फोर्सेस, और अगर फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, सो वी सबट्रैक्ट द फोर्सेस. So just go through all these parts, inertia, and the rest of the part we will continue in the next lecture. So thank you, have a nice day.